Thank you. All of you are most welcome at my channel, Fundamental Classes. I myself, S.P. Kushwaha, have experience of last 20 years in the experience of NDT field, as well as I also have experience of last 25 years teaching experience in mathematics as well as specialization in physics. So that's why today I will deliver my lecture on NDT. NDT means non-destructive testing. There are so many parts of NDT, just like ultrasonic testing, UT, MPI, magnetic particle inspection test, DP. So I will take class today DP, that is dye penetration test. Otherwise, like NDT includes so many testing, जैसे UT, MPI, DP, रेडियोग्राफी, इसके बाद में आपका हुआ एडी करंट टेस्टिंग. So basic objective of NDT is only to check the homogeneity of the material without destroying the test piece of material. So each and every testing has its own limitation. So earlier I have taken my class on ultrasonic testing, but today I will deliver my lecture on DP test. So let us consider. Start. What is DP? DP means dye penetrant testing. It is also known as LPI, that is called liquid penetrant inspection. So first of all, we will have to ensure what is its प्रोसेस फ्लो चार्ट. तो सबसे पहले देखिए, पहला होता है क्लीनिंग ऑफ द सरफेस, कि हम लोग को जिस जगह डीपी करना होता है उसके सरफेस को अच्छे से क्लीन करते हैं. वाई क्लीन क्यों करते हैं? तो क्लीनिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम द सरफेस. वाई? तो पहला पार्ट क्लियर हुआ कि सरफेस क्लीनिंग इज टू बी कैरिड आउट. इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू रिमूव dust particle, grease and oil from the surface, so that अब एक यहाँ पार्ट आएगा, थीटा should be less than 90 degree. That is very important. So we will discuss what is theta. Theta is known as angle of contact. देखिए क्या होता है, इंजीनियरिंग इज जस्ट यूज ऑफ फिजिक्स. तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. क्लीनिंग इज क्लियर हो गया भाई. बेसिक पार्ट है टू रिमूव. व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीनिंग ऑफ सरफेस? टू रिमूव dust particle, oil and grease from the surface. Why? What is the objective behind it? So that theta must be acute angle, that is less than 90. What is theta? Angle of contact. देखिए, what is angle of contact? अब एक एक करके हम लोग देखेंगे. सपोज कीजिएगा ये आपकी कोई ग्लास की प्लेट है, ओके, एंड इसके अंदर आपका ये वाटर है. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एंगल inside the liquid between tangent solid surface and liquid surface. सपोज कीजिएगा ये ग्लास है और ये आपका क्या है, वाटर है, ओके. और दूसरा ये भी हो सकता है, मान लीजिएगा आपने एक ग्लास की रॉड को लिया, इट इज प्लेस्ड इनसाइड मरकरी. ये आपका यहाँ वाटर था, बट यहाँ पर आपका ये है मरकरी, ओके. दिस इज ग्लास वाटर. अब यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वही है. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श कोण. तो एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड बिटवीन टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस. अब आप देखेंगे इसका रोल क्या होता है. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्लियर हो गया. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद मैं पुनः बोलता हूँ, एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड बिटवीन टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस. तो आप देखिएगा, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज acute angle, that is less than 90 degree, then what will happen? Such type of liquid for which angle of contact is acute angle, they will wet the surface. तो surface को गीला करेंगे, and when they are poured inside the capillary, they will raise. तो क्या होगा, ऊपर जाएगा. But if angle of contact is obtuse, that is जैसे for contact angle for mercury and glass, ये obtuse होता है, that is 135 degree. इस केस में क्या होता है, those liquid for which angle of contact is obtuse, they will not wet the surface, and whenever they are poured inside the capillary, they will not
elevate but they will depress inside the capillary tube. तो पहला जो मेरा ऑब्जेक्ट है cleaning of surface. Cleaning of surface is carried out so that angle of contact may be acute angle. Angle of contact is clear. एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ. Angle of contact for clean water and clean glass plate, that is 0 degree. But for ordinary water and glass plate, it is approximate 8 degree. But angle of contact for mercury and glass, that is up to 135. That's why whenever mercury is poured on the glass plate, it doesn't wet. जबकि ग्लास के प्लेट पे मरकरी को डालते उसको गीला नहीं करता है. और आप whenever it is poured inside the capillary, it doesn't elevate it, but it is depressed, ऊपर भी नहीं जाता है. ओके, अब आप देखेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर silver and water, that is 90 degree. That's why edge of water, surface of water at the edge in silver pot, that remains horizontal. आप देखेंगे कि कोई सिल्वर के पॉट में वाटर को डालेंगे, एज पे भी वो हॉरिजॉन्टल रहता है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रेंट. कि भैया हम लोग इसको पहले तो क्लीनिंग का दिया, क्लीनिंग का ऑब्जेक्ट हो गया. फिर हमारा पार्ट है दूसरा एप्लीकेशन ऑफ पेनेट्रेंट. कि पेनेट्रेंट को अप्लाई करेंगे. अब आप देखेंगे पेनेट्रेंट क्या है और गुड पेनेट्रेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए. तो पेनेट्रेंट अब आप थ्री टाइप, फिनाइल पेनेट्रेंट हो सकता है, कलर कंट्रास्ट पेनेट्रेंट हो सकता है, फ्लोरेसेंस पेनेट्रेंट भी हो सकता है. बट जनरली वी यूज कलर कंट्रास्ट पेनेट्रेंट जस्ट लाइक डाई. अब आप देखेंगे कि व्हाट मे बी द क्वालिटीज ऑफ गुड पेनेट्रेंट. तो नंबर वन तो ये कि इसका कलर कंट्रास्ट होना चाहिए, लो टेंशन होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो ड्वेल टाइम. वी विल डिस्कस, इसके बाद में आने वाले हैं ड्वेल टाइम. लो ड्वेल टाइम होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, हाई कैपिलरिटी होनी चाहिए. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेनेट्रेंट. ओके, तो पहले क्या किया, सपोज कि कोई जॉब है आपका, उसने अच्छे से क्लीन किया, फिर आपने उसमें पेनेट्रेंट को अप्लाई कर दिया. पेनेट्रेंट के बाद में फिर आता है ड्वेल टाइम. व्हाट इज ड्वेल टाइम? ड्वेल टाइम का मतलब होता है द टाइम विच इज अलाउड फॉर पेनेट्रेंट टू सी इनसाइड द डिसकंटिन्यूटी, दैट इज नोन एज ड्वेल टाइम. मतलब पहला तो पार्ट आप नोट कर लो भाई कि जो डीपी होता है, डीपी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच आर ओपन टू द सरफेस. ऐसी डिसकंटिन्यूटी हो, क्रैक हो, जिसका मुंह खुला होना चाहिए. क्रैक मस्ट ओपन टू द माउथ सो दैट डाई में पेनेट्रेट इनसाइड द क्रैक्स या इनसाइड द डिसकंटिन्यूटी. ओके, तो वही है ड्वेल टाइम. क्लियर हुआ. ड्वेल टाइम का क्या होता है, जनरली इट इज 10 मिनट फॉर फेयर्स मटेरियल. सबसे पहले क्लीनिंग कर दिया क्लीनर से, क्योंकि इसके लिए होता क्या है, एक आपकी डीपी किट होती है. डीपी किट को बोलते हैं डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग किट. डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग किट होती है. इसमें 3 पार्ट होते हैं. एक तो क्लीनिंग के लिए होता है आपका क्लीनिंग एजेंट होता है, दूसरा हमारा डाई होती है, तीसरा हमारा डेवलपर होता है. ओके, तो ये आपकी क्या है, डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग किट होती है. तो क्लीनर से क्लीनिंग एजेंट लगा के उसको साफ करेंगे. फिर मैंने अप्लाई पेनेट्रेंट डाई को अप्लाई कर दिया. और ड्वेल टाइम वी विल हैव टू वेट फॉर 10 मिनट. एक्चुअली क्या होता है, ड्वेल टाइम मैंने बता दिया, द टाइम विच इज अलाउड टू पास inside the discontinuity. Generally it is 10 minutes for ferrous material so that dye may clearly penetrate inside the discontinuity. इसके बाद मेरा होता है rinsing. ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज rinsing. rinsing क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. rinsing का मतलब होता है, rinsing is a process to remove extra dye from the सरफेस ऑफ द जॉब विच टू बी टेस्टेड. जो एक्स्ट्रा आपकी डाई है उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे. तो दैट इज नॉन, वो हमारा कहलाता है रिंसिंग. ओके, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बिफोर रिंसिंग, सपोज कीजिएगा देखिए
ये आपका कोई जॉब है जिसको मैंने डीपी टेस्ट से टेस्ट करना है। ये जो हमारा बना हुआ है एक क्रैक से, ये ऊपर जो रेड कलर की मेरी डाई लगी है, ये है आपका बिफोर रिंसिंग। ओके, ये है हमारा आफ्टर रिंसिंग। अब आपको देखेंगे रिंसिंग में क्या करते हैं कि भाई रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा डाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जॉब, दैट इज नॉन एज रिंसिंग। बट इतना ये ध्यान रखना है कि रिंसिंग इज टू बी कैरिड आउट वेरी केयरफुली। क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा डाई may be removed from the surface, but डाई मस्ट रिटेन इनसाइड द क्रैक आल्सो। इतना रिंस मत कर दो कि यहाँ से भी चला जाए, ठीक है। सो बाय सीइंग these two figures you may get an idea कि rinsing is to be carried out very sincerely so that dye may remains inside the discontinuity after rinsing। okay, जब रिंसिंग कर दिया, इसके बाद में मेरा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर। हम लोग क्या करते हैं कि डेवलपर को उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डेवलपर क्या है, देखिए, सस्पेंशन ऑफ व्हाइट पाउडर, ठीक है, इन ए वोलेटाइल सॉल्यूशन। सस्पेंशन ऑफ ए व्हाइट पाउडर इन ए वोलेटाइल सॉल्यूशन, दैट इज डेवलपर। बट डेवलपर का भी क्या ऑब्जेक्टिव है, डेवलपर एक्ट्स जस्ट लाइक ब्लॉटिंग एजेंट whenever it is applied on the surface. If there is actually crack, it will draw dye from the discontinuity, and presence of red color dye over the surface on white developer, that will indicate the presence of the dye crack inside the material। okay, तो डेवलपर क्लियर हुआ। व्हाट इज डेवलपर? डेवलपर का बताया क्या होता है, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। तो डेवलपर है सस्पेंशन ऑफ व्हाइट पाउडर इन वोलेटाइल सॉल्यूशन। और व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो डेवलपर एक्ट्स जस्ट लाइक ए ब्लॉटिंग एजेंट व्हेनेवर इट इज अप्लाइड ऑन द क्लीन सरफेस, इट विल ड्रॉस डाई फ्रॉम द डिफेक्ट। ओके, इसके बाद में हमारा आता है इंस्पेक्शन। व्हाट इज इंस्पेक्शन? तो ये बात हम को रिव्यू करते हैं। पहला पार्ट है cleaning of the surface. Surface is to be cleaned very clearly so that dust particle, oil, grease may be removed and the angle of contact may remain accurate, that is 90 degree. Application of penetrant. इसके बाद क्या करते हैं, penetrant dye to be applied on the surface. We will have to wait for 10 minutes, that is known as dwell time, so that dye may penetrate inside the discontinuity. After 10 minutes, we will have to rinse. Rinsing is to be carried out so that extra dye may be removed from the outer surface of the job. इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर, जब मैंने रिंसिंग कर दिया उसके बाद में वी विल हैव टू अप्लाई डेवलपर। डेवलपर मैं क्या बोला था आपको, डेवलपर के लिए व्हाट इज डेवलपर? सस्पेंशन ऑफ व्हाइट पाउडर इन ए वोलेटाइल सॉल्यूशन। डेवलपर इज टू बी अप्लाइड ऑन द क्लीन्ड रिंस सरफेस। ओके, what is the basic objective of developer? Developer acts just like a blotting agent. It will extract या draws the, it will draws, खींच लेगा, draws the dye from the discontinuity and presence of inspection करेंगे। इसके बाद में we will have to inspect the surface. If red color dye seen over the developer, it will indicate the presence of defect। okay, post cleaning, after all whenever test is over we will have to clean the job thoroughly। तो अभी मैंने इसमें कितने बेसिक मेरे पॉइंट था इसको देखना पड़ेगा। हर टेस्टिंग की एक लिमिटेशन होती है। तो व्हाट इज द लिमिटेशन, आप ये भी देखेंगे कि भाई इसकी डीपी की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशंस ऑफ डीपी, नंबर 1 है कि माउथ ऑफ क्रैक। ओके, माउथ of crack must open to surface, must open to surface। क्रैक का मुंह खुला होना चाहिए। सेकेंड पार्ट है इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पोरस मटेरियल। ओके,
porous materials. देखिए, each and every testing has its own limitation. तो limitations of DP में पहला तो ये होता है कि mouth of the crack must open to the surface so that dye may penetrate inside the discontinuity. Understand? और second part ये है कि it is not applicable on porous material. अगर material porous है, in that condition DP may be not carried out. Correct? अभी मैंने एक part आपको और बोला था कि जो आपका penetrant है, what are the characteristics of good penetrant? मैंने पहला पार्ट बोला था, it must have low tension, it must have low dwell time. Dwell time का मतलब है the time which is allowed to pass inside the crack. ठीक है, तो कम होना चाहिए so that within very short period dye may penetrate inside the discontinuity. तो पहला क्या था? लो टेंशन, लो dwell time, इस बाद में लो विस्कोसिटी, हाई कैपिलरिटी, और इसके बाद में आपका था नॉन टॉक्सिक. अब एक पार्ट आया था विस्कोसिटी. तो व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स. ओके, आप देख सकते हैं थिक लिक्विड जस्ट लाइक ग्लिसरीन हुआ, कोलताल हुआ, कोलताल, हनी, glycerin, they have high viscosity. Understand? Rather than that of the thin liquids as water. देखिए, for example, if we place some water and coal tar on the surface of the table, we will see immediately coal tar come to the rest due to high viscosity, but water comes to rest after covering sufficient distance. Okay, ये तो रहा आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर? लिमिटेशंस भी हो गई. सो दिस इज अबाउट डीपी. ओके, अब एक पार्ट हमारा था कि ये तो हुआ लिमिटेशन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीपी? डाई पेनिट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये होता है कि डीपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरिटी. कैपिलरिटी क्या है? कि whenever a liquid is poured inside a capillary, it will either elevate or depress. It depends upon the angle of contact. Those surface for which angle of contact is acute angle less than 90, they will wet the surface and they will elevate in the capillary tube. And those liquids for which angle of contact is obtuse, for example, for mercury and water, that is 135, which is obtuse, so they will not wet the surface and they will not elevate, but they will depress inside the capillary tube. So basic principle clear हो गया. So it is much about DP test. So thank you very much. Next time I will deliver lecture on MPI, that is magnetic particle inspection test. I myself certified level 2 in MPI UT and have experience of last 20 years in this field, and present time also I am doing work in this field also. If you have interest in my videos, in my class, so please like my videos, share it, and subscribe my channel. Thank you.